کہ پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا میں منعقدہ عالمی کانفرنس کے دوران عالمی اداروں اور ممالک نے پاکستان کو 10 ارب 60 کروڑ ڈالر امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس امداد میں اسلامی ترقیاتی بینک کے 4.2 ارب ڈالر اور عالمی بینک کے 2 ارب ڈالر شامل ہیں۔ جاوید حسین رپورٹ کریں گے۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا میں عالمی کانفرنس کا انعقاد۔ عالمی اداروں اور مختلف ممالک کا پاکستان کو 10 ارب 60 کروڑ ڈالر امداد دینے کا اعلان۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے 4.2 ارب ڈالر اور عالمی بینک کے 2 ارب ڈالر بھی شامل۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق جنیوا کانفرنس کا دن بھر جاری رہنے والا مکمل سیشن عالمی برادری کی فراخ دلی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یورپی یونین نے 93 ملین ڈالر، جرمنی نے 88 ملین ڈالر، چین نے 100 ملین ڈالر، اسلامی ترقیاتی بینک نے 4.2 ارب ڈالر، عالمی بینک نے 2 ارب ڈالر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 ارب ڈالر، جاپان نے 77 ملین ڈالر، یو ایس ایڈ نے 100 ملین ڈالر اور فرانس نے 345 ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا۔ مجموعی طور پر امداد کی یہ رقم 8 ارب 57 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ کانفرنس کے پہلے سیشن میں 8.5 ارب ڈالر امداد، جبکہ دوسرے سیشن میں پاکستان کو مزید 2 ارب ڈالر ملے۔ دوسرے مرحلے میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر اور برادر ملک سعودی عرب نے بھی 1 ارب ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس کے آغاز پر پاکستان میں سیلاب کی تباہی، نقصانات، امداد اور بحالی سے متعلق خصوصی ویڈیو دکھائی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کانفرنس کے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے بڑا نقصان ہوا، تباہی کا خود مشاہدہ کیا اور مناظر دیکھ کر دل ٹوٹ گیا۔ سیلاب سے 80 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے اور ملک کے بڑے حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ مشکل حالات میں بھی پاکستانیوں کا جذبہ دیکھ کر حیران ہوا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ 3 سال کی مدت میں 16.3 بلین ڈالر کی امداد درکار ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں سیلاب سے ہونے والی تباہی اور بحالی کے لائے عمل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام کا درد محسوس کرنے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، 33 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ انفراسٹرکچر کی تباہی کے ساتھ معیشت بھی بری طرح متاثر ہے۔ متاثرین کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں مدد کرنے والے ممالک کو کبھی نہیں بھولے گا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 16.3 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان 50% خود برداشت کرے گا۔ سیلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کا مشن ہے جنیوا میں بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر کی تباہی کے ساتھ معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ تعمیر نو کے ساتھ ملکی معیشت کی بحالی بڑا چیلنج ہے۔ فریم ورک پر کام کرنے کے لیے 16.3 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا عالمی برادری سے مطالبہ تھا کہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کی جائے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں IMF کو پاکستان کی مالی امداد جاری رکھنے کے لیے رام کر لیں گی۔ عالمی ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ IMF کی امداد کے باوجود مالی سال 2024 میں بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات منڈلاتے رہیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے امید ظاہر کی ہے کہ سیلاب سے تباہال پاکستانی معیشت کو IMF سے گرین سگنل مل جائے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے گرین سگنل دے دیا تو دیگر ذرائع سے مزید 5 ارب ڈالر آنے کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ رپورٹ میں ساتھ ہی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ IMF کی معاونت ہونے کی صورت میں بھی مالی سال 2024 میں پاکستان پر ڈیفالٹ ہونے کے خدشات منڈلاتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 2024 کو مدت پوری کرنے والے غیر ملکی بانڈز کی قیمت آدھی رہ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو IMF سے مزید 3 ارب ڈالر کا حصول کرنا ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ MQM کا بلدیاتی الیکشن میں بھرپور تیاری سے اترنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بلدیاتی حلقہ بندیوں پر گورنر ہاؤس کراچی میں MQM کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں MQM رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی شریک ہوئے ہیں۔ فاروق ستار، PSP اور MQM کا چند روز میں ایک ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شیڈیول کے مطابق کرانے کا اعلان ہوا ہے۔ MQM کے ووٹر لسٹوں پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست خالی قرار دینے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے وقار علی سید رپورٹ کریں گے۔
कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला, इसहाक डार की सीट भी बच गई, खाली करार देने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने महफूज फैसला सुनाते हुए MQM की दरखास्त मुस्तरद और जमात इस्लामी की इलेक्शन कराने की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को कराची और हैदराबाद डिवीजन के हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात करने का मरासला भी भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में पोलिंग अमले की हिफाजत यकीनी बनाने और क्विक रिस्पांस फोर्स को अलर्ट रखने की हिदायत भी की है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने की दरखास्त भी खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के मामले पर 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, M.A. जिन्ना रोड, हो शहर की कोई मरकजी शाहरा या फिर गली मोहल्ला। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के बावजूद सियासी जमातों के परचम, बैनर्स इस बार गायब हैं। सियासी सन्नाटा सा छाया हुआ है, न कोई कॉर्नर मीटिंग, न सियासी गहमा गहमी। शहरी भी माजी की सियासी रौनकों को याद कर रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा है, ना कोई गर्मा गर्मी है, ना कोई नजर आ रहा है, ना कोई दिख रहा है, ना कोई पार्टी का बंदा नजर आ रहा है। आपके सामने कौन है? कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। लोग पता नहीं क्या क्या कर देते थे, लेकिन सर जी अभी कोई भी किसी पार्टी की तरफ रद्द-ए-अमल कोई रुजू नहीं कर रहा है इतना। गुज़िश्ता बरस 3 मरतबा इंतखाबात के इल्तिवा के फैसलों के सबब सियासी रहनुमा भी शशोपंज में मुब्तला नजर आते हैं। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब हो रहा है, साजिशें अब भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, जो आपने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कायम रहे। आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले हैं या सब के सब चूल्हे भाड़ चूल्हे में डालो और जो जिसकी मर्जी है करते रहो। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद समेत कुछ इलाकों में 15 जनवरी को इंतखाबात शेड्यूल हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के 3 मरतबा इल्तिवा ने सियासी जमातों और शहरियों के एतमाद को शदीद ठेस पहुँचाई है। यही वजह है कि चौथी मरतबा बल्दियाती इंतखाबात अब महज चंद दिन की दूरी पर हैं, लेकिन शहर के गली मोहल्लों में कोई ख़ास सियासी गहमा गहमी अब तक न देखी जा सकी। कैमरामैन जियाउर रहमान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। सिपा सालार के अहम दौरे के हवाले से खबर है कि अबूज़हबी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई। अरब अखबार ने यह तफसील दी। मजीद कहा, शेख मोहम्मद बिन जायद की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी गई। मुलाकात के दौरान दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर भी मुफस्सल तबादला ख्याल हुआ है। अपडेट करते चले अहम खबर से। अहम दौरे के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया है और आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है और इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद भी हुई है। जबकि शेख मोहम्मद बिन जायद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी है। इससे कबल सऊदी अरब का दौरा भी आर्मी चीफ ने मुकम्मल किया। पंजाब के ऐवान से खबर शामिल करेंगे। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट न लेने पर अपोजिशन बरहम। ऐवान में एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। हुकूमती अरकान ने मेहमान गैलरी में बैठे राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने ऐवान से 21 सरकारी बिल मंजूर करा लिए। लाहौर से लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर सरदार सिब्तैन खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने आगाज में ही नारेबाजी शुरू कर दी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट को इशू बनाकर ऐवान में हंगामा बर्पा कर दिया। स्पीकर के डाइस का भी घेराव किया। जवाब में हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। मेहमान गैलरी में बैठे राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फिजा में उछाल दी।
शोर शराबे और हंगामा आराई के बायस स्पीकर को इजलास की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमती रुकन राना शहबाज का कहना था कि पंजाब असेंबली से अता तारड़ को निकाला गया और वो बैठे हैं। इनमें हौसला है तो नशिस्तों पर बैठकर बात सुने। राजा बशारत ने कहा कि एतमाद का वक्त आया, पहले भी जीते आइंदा भी जीतेंगे। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि ऐवान में कैबिनेट मौजूद नहीं, पूरी कार्रवाई गैर आईनी और गैर कानूनी है। स्पीकर सिब्तैन खान ने कहा जब वक्त आएगा तो वजीर आला के एतमाद का वोट ले लेंगे। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन की मज़ाहमत के बावजूद 21 सरकारी बिल मंजूर करवा लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास 2 बजे दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा है कि सियासी मुखालफिन पंजाब में नंबरों का बड़ा शोर डाल रहे थे। सूबाई असेंबली में दोबारा अददी अक्सरियत दिखा दी। एतमाद का वोट अपोजिशन के मुतालबे पर नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे। राजा बशारत ने कहा था कि पहला वज़ीर दाखिला है जो असेंबली की कार्रवाई को सबोताज कराने के लिए सारा दिन ऐवान में मौजूद रहा। आसिफ जरदारी को समझ लेना चाहिए, हर वक्त लोगों के ज़मीर नहीं खरीदे जा सकते। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नजर नहीं आ रहा। मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। अपनी मर्जी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। कौम खड़ी होगी इमरान खान के साथ। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जाना, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है उसके अंदर। इतना फारिग वजीर दाखिला आज तक नहीं देखा जो सिर्फ असेंबली की कार्रवाई को सैबोटाज करवाने के लिए सारा दिन पंजाब असेंबली में मौजूद रहा। हमारी अक्सरियत पर सवालिया निशान होता तो शायद हम ये 21 बिल पास न कर सकते। हमारे वजीर आला को जो है वो इस ईवान का एतमाद हासिल है। अब जरदारी साहब को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि हर वक्त लोगों का ज़मीर खरीदा नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत के पास 186 अरकान की अक्सरियत नहीं, आज सिर्फ 174 MPs आए। परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दें, कल ये दोबारा नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। नून लीग के वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज होंगे। राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे। जिस हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है और वो गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की एडवाइस के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में गई हुई है, वरना अगर उनके पास नंबर होता तो इतना जतन करने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। एक तरफ इमरान खान साहब 11 तारीख से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे बज़िद हैं, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो ग्रेज़ा हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास नंबर पूरा नहीं है। कल ये दोबारा कोशिश करेंगे कि अपना नंबर जो है पूरा करें। इनके पास 186 का नंबर नहीं है, ये इस वक्त 175 174 के राउंड अबाउट हैं। हमारे पास अक्सरीती नंबर है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है इस सूबा के। वो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश और असेंबली तोड़ने की कोशिश करने की बजाय मेरा ये मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जो हैं हमजा शहबाज साहब, वही हमारे जो है वो उम्मीदवार होंगे, हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। वो इमरान खान सारी सियासी जमातों से लड़ रहा है, वो क्यों लीग से भी लड़ रहा है। पंजाब असेंबली के हंगामा खेज इजलास के बाद एतमाद के वोट पर बाहमी मुशावरत के लिए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बातें हुई, अंदरूनी कहानी जानेंगे लियाकत अली की रिपोर्ट में। पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और रासख इलाही की ज़मान पार्क आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने बताया कि सूबे में आटे की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए सरकारी गंदुम का कोटा 2 गुना कर दिया है। मुलाकात में पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट की हिकमत अमली के हवाले से भी बातचीत हुई। इमरान खान ने कहा कि महंगाई
महंगाई आसमान को छू रही है। इक़्तिदार के भूखे हुक्मरान महंगाई का तूफान लेकर आए हैं। पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। हर फैसले में इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इमरान खान ने पंजाब में आटे के बहरान पर काबू पाने के हवाले से मजीद इक़दामात पर जोर दिया। दीगर मसाइल की बात करेंगे। फैसलाबाद में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतजामिया ने कोटा बढ़ाने की बजाय सेल्स पॉइंट्स बढ़ाकर ही इक्तिफा कर लिया। शहरी लंबी कतारों में लगकर तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। के लिए खुराक की बुनियादी ज़रूरत आटे का हसूल एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। गंदम के देसी आटे की कीमत 110 से 130 रुपए फ़ी किलो हो चुकी है, जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। ऐसे में अपनी रोजी रोटी के जरिए को छोड़कर सरकारी कीमत वाले सस्ते आटे के हसूल के लिए तवील कतारों में लगकर घंटों इंतजार के बावजूद शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। जिले की 48 फ्लोर मिल्स को फी कस यौमिया 27 बोरी गंदम का कोटा दिया जा रहा है, मगर इसके बावजूद मुनज़्ज़म तरसील न होने की वजह से आटे के हसूल में दरपेश मसाइल कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को जो अपने वर्कर हैं ना, उनको ज़रा तरबियत देनी चाहिए कि अवाम के साथ कैसे डील करना है। हम पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी हम अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हैं। लोग इधर घंटों कतारों में खड़े होकर घर चले जाते हैं तो आटा उनको दूर दूर तक भी नहीं मिलता। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी अनोखी हिकमत अमली अपनाई गई है। आटे का कोटा बढ़ाने के बजाय सेल्स पॉइंट को 24 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स इसी हिकमत अमली पर मुतमईन नजर आते हैं। अभी जितना भी कोटा चल रहा है वो काफ़ी है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वो सारे की सारी जो आटा है, जितनी भी गंदम हमारे पास आती है, तो उसको हम प्रॉपरली अगर तरीके से पब्लिक तक पहुंचा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और आटे के कोटे की ज़रूरत है। शहरी कहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया को इस मसले के हल के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आम शख्स को सस्ता आटा इसके घर के करीब ही वाक़े दुकानों से मिल सके। आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत के हसूल के लिए शहरियों का यूं लंबी कतारों में लगकर घंटों तक ख्वार होना ज़िला इंतज़ामिया, मुतल्लिका इदारों और हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर में आटे और रोटी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज हो गईं। सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी के कारकुनों ने आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खैबर पुख्तनख्वा असम्बली के सामने एहतजाज किया, जबकि JUI के कारकुन हश्त नगरी में महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कारकुनों ने सुबह हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। हमारी सूबे का आलमिया ये है कि हमेशा से हमारी निसार रहती है पंजाब की हुकूमत पे, और इस वक्त पंजाब में भी PTI की हुकूमत है और गैर एलानिया जो है वहाँ पे पाबंदी है, क्योंकि रास्ते में जो पंजाब हुकूमत चेक पोस्टें लगाई हुई हैं वो हमारे ताजरों को इतना उनसे जो है वो बत्ता वगैरह लेते हैं कि हमारे सूबे में वो गंदम पहुँचते वो बहुत महंगी हो जाती है। महंगाई ये बदनामी के जिम्मेदार जो है ये हमारा सूबाई हुकूमत है, और जितने भी महंगाई आई हुई है ये इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से आई हुई है। PTI की जिली तंजीम ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। शहरी कहते हैं कि आटा, चीनी और दीगर अशिया अवाम की खरीद से बाहर हो रही हैं। PTI वाला बोलते हैं PDM चोर है, PDM वाला कहते हैं PTI चोर है। हम जैसे सफ़ेद पोश लोग जीना हमारा मुहाल हो गया, तो एक मजदूर कार और एक जो 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाता है वो क्या करेगा। गैस नहीं है, इधर बिजली के बिल आ रहे हैं, तो हम किसको बोले। एक कहते हैं कि इसने ये महंगाई की है, दूसरा कहता है इसने ये महंगाई की है। सूबे में महंगाई की लहर में इजाफे को सियासी जमातें एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा रही है। बलूचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा में आज सरकारी आटे की अदम फराहमी के बायस खवातीन और बच्चे सरापा एहतजाज सड़कों पर निकल आए। अक्सा मीर की रिपोर्ट देखिए। आटे के लिए आएंगे, ठुडे मार कर हमें बाहर निकालते हैं कि आटा ले आओ, बच्चे रो रहे हैं। बलूचिस्तान में गंदम के बहरान के बाइस आटे की किल्लत ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी सस्ता आटा 1470 रुपए में फराहम करने के लिए पॉइंट्स बनाए गए, लेकिन ताहम आज कहीं भी आटा फराहम नहीं किया गया। सस्ते आटे की तलाश में खवातीन, मासूम बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। औरतों को, बच्चों को, मर्दों को जलील किया हुआ रोडों पे लाके, कभी आटे के लिए, कभी घी के लिए, कभी प्याज के लिए। ऐसी गवर्नमेंट ने महंगाई कर दिया है जो
दिल चाहता है बस आपको खत्म करे। तकरीबन 12वां दिन ही हम लोग आ रहे हैं इधर, ना आटा मिल रहा है, अभी आएगा 2 घंटे बाद आएगा, शाम को हम लोग वापस जाते हैं। ना हम लोगों ने दिहाड़ी पे काम किए ना कुछ किए। एहतजाजी धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हुई तो इंतजामिया हरकत में आई, मुज़ाकरात किए और यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म हुआ। रूस से 2 जहाज दरामदी गंदम की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। हुकूमती सतह पर रूस से मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी।